And I am the head of Alumni Association of Art Bangalore. So on behalf of all of the institute, our friends and families, thanks a lot for being here. And it is a great privilege and honor to have somebody as maestro and as excellent in the skill of Kathak with us today, Shri Birju Maharaj ji. Please give him a warm We are also honored by Shashwati Didi. Disciples of Birju Maharaj ji, Murari Sharan Gupta ji, and all the volunteers of Samar, our EPGP students, faculty members, families, friends of IMB. Today is a very important day and we are beginning a journey where we are doing a series of talks and events that bring the community together. Arts and culture are a very essential part of our lives, and we at IIM Bangalore believe that it is the arts and culture that bring in the creativity nourishment. And we have to bring these two subjects for all our community members. Management aspires to create excellence. Arts and culture are in the space of excellence. And it is our honor to have a blend of these two today. We have designed this talk with our friends from the EPGP. Can you please raise your hands, our EPGP students? So there they are. Bunch of smart, 10+ years of experience from the corporate, and it's not easy to leave a very secure job and taking a risk to come back to study at this age. And I'm sure many of you have families, children, so managing all of that is a big challenge. The EPGP seminar is an important concept of this program, which requires that 70% of the time of these seminar series are spent with members of the community and members who are skilled and experts in a certain space. And it is just our good fortune that Panditji was here along with Shashwati Didi, and thanks a lot to both of them that you took time and came to our campus. This is where I also studied. And some of my gurus are here. Rahul is here, Mr. Singh is here. Then where is Mr. Prasad? Okay, he's outside, but he was here, so he was a chairperson. So some of my gurus are here, some of my alumni are here. I can see Jahanzeb, I can see Nalini, wife and FPM alumni now. So thanks a lot for coming. Sangeeta, so thanks a lot for coming. Without much ado, I would like to also now take the opportunity and invite Simran, who can then introduce Maharaj and Shashwati Didi. But before that, may I request Soni? Is Soni here? Yeah. Soni, hi. Community to welcome Maharaj with a bouquet of flowers. Thank you. May I request Soni to also give a bouquet of garlands and flowers to Shashwati Didi. अच्छा, first to Maharaj ji. And now to Shashwati Didi. Thank you. Thank you, Maharaj. Thank you. May I now request Simran, who also happens to be my better half, and member of Samam, to please speak a few words about Samam and also introduce Maharaj and Shashwati Didi. Good morning, everyone. It's very nice to see
such a wonderful audience. I'm so blessed today to be here standing in front of Maharaj-ji and Didi. There is nothing that I will say can convey what they mean to me, what I have learned from them, and what they are. So everything that I would read now is something that probably many of you know, but they are much more than what I can say. Maharaj-ji, I just don't have any words, really. He's such a great and talented person and a wonderful human being. Hailing from an illustrious family of superlative dancers who were instrumental in reviving the dying art form of Kathak, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj, my Guruji, is the leading exponent of the Lucknow Gharana of Kathak and an internationally acclaimed artist of immeasurable stature. He took Kathak to new heights by choreographing Kathak dance dramas, where he blends movement and dramatics. To unveil the surreal beauty of the subtle dance form of Kathak, an exquisite dancer, performer, vocalist, percussionist, as well as being a sublime composer. Besides teaching at Kalashram, his Kathak Institute in Delhi, he also conducts workshops all over the world. Maharaj-ji is an amazing and inspiring guru, and we are deeply grateful at having him here today. Ladies and gentlemen, the incomparable Pandit Birju Maharaj, Maharaj-ji, as I fondly call it. Sashwati Didi. Again, dance is extraordinary. She's the prime disciple of Pandit Birju Maharaj, and I think she's the embodiment of a true disciple who has just given all her years and everything to this beautiful form of Kathak with Maharaj-ji, learning this form and so dedicated to the form and spreading the awareness of dance. I'm sorry, I'm only looking at that side. For everyone. She's a prime disciple of Pandit Birju Maharaj, an eminent and consummate artist. Sashwati Didi embodies in her art the traditional knowledge and creativity of her guru. She excels in Nritya and Abhinaya. With vast experience of performance, both in group and solo presentations, and a comprehensive grasp over the intricacies of the dance style, Sashwati Didi has established herself as one of the finest Kathak dance performers and teachers in the world today. The recipient of innumerable awards, Sashwati Singh has travelled extensively conducting workshops, lectures and master classes. She is an integral part of Kalashram, the Kathak Institute of Maharaj-ji. Didi, it is an honor and a pleasure to have you with us. Ladies and gentlemen, now I want to introduce you to Murari Sharan Gupta, my guru from Bangalore, who actually took me to Kathak. He is the one who introduced me to Kathak, and he is also heading the organization, the artistic director of Samam Center for Dance and Movement. Murari-ji is an ardent disciple of Pandit Birju Maharaj, and through Samam he hopes to carry forward the legacy of his guru and promote the sublime beauty of the Lucknow Gharana of Kathak in Bangalore. He's a wonderful dancer. He's travelled all over India and abroad, and a wonderful guru as well. Now I would first like to ask Didi to first come and say a few words, and then probably introduce Maharaj-ji. I'm really scared. I don't think I can take the honor of saying anything. I would first like to call Didi. I'm truly excited because this is very rare that we face an audience who are great, intelligent people, and now that I know there are not only the institute people, there are people who have come from various places, established great men in their own fields, and I don't know what that small abbreviation really is. Executive Postgraduate Program, EPG. Great. So I myself also pretty scared to stand here, and more
more so because, truly speaking, Rakesh, this is not the kind of place that we are used to, unless we show off our bodies and we feel pretty restricted just using words. So, but however, it's a joy that we are here as Maharaji and I shared another event of a similar kind, one would say, but not with such great and senior people. It was only from the Management Institute, Arundhamji's Institute in Delhi. That was the first time we spoke to such a group of people. And both me and Haji, all through the journey, we were not sure what we should be talking about. Here we feel more comfortable because at least he being part of an extended family of someone and the art world, he has assured us that people will be a little patient listeners and not rowdy like we had in Delhi. So, and I actually don't know what exactly we should be talking about, but the only thing which I feel good as what I can share is that yes, because you all have come here and अच्छा इतना सब अच्छे पोस्ट में फिर क्यों आए हैं? क्या पढ़ने आए हैं? मैनेजर और लीडर बनने आए हैं। ताकि वापस जाके और बड़े-बड़े लीडर। अरे वाह। So yes, I can only share that why I was also talking to Rakesh yesterday. I belong to a family of complete not musical people because no one in my family, we are Bengalis, but I've always lived in Delhi. My father and my whole family behind are doctors. I was pushed into taking medicine and I pursued for 2 years, but very unwillingly though, and I was doing very badly in my exam assessments, and I did not get an admission in Delhi, so I was studying at Aligarh. So that altogether was giving me a lot of unhappiness, which reflected in my results. And then I actually made my father to excuse me out of that territory of doctors which he belongs to. And today, the only thing I can share with not the senior people, but at least the youngsters, that I think I made a very correct decision at that point. And to come out and, जैसे कि मैंने कहा, no one, truly no one in my family, even my cousins and the larger family that we have, कभी किसी ने संगीत के नज़दीक भी नहीं गए. Though we are from Bengal, a place where music is really very strong, the only thing which I had in my genes was probably theatre. My grandfather used to do वो जज थे, पर मैंने from my mother's side. तो खैर वो जो भी genetic वो होगी बात. By the time I was starting medicine, तब तक छुटपने से डांस as a hobby शुरू किया था, पर तब तक लोगों ने थोड़ी तारीफ करनी शुरू की थी, but I realized that I'm wasting my time doing something which A, I don't like, B, which doesn't really appeal to me, and C, because अगर 4 लोगों ने भी मेरी तारीफ 1-2 प्रोग्राम में कर दिया, if I made some individual mark and a appearance or a personality of my own, then why should I want to be a ordinary mediocre doctor even if my whole family backs me up with the profession. तो यही केवल मैं, as I was talking to Rakesh yesterday, I said, sometimes सब लोग आजकल बाबा मैनेजमेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि बहुत prestigious जगह है, बहुत पैसा मिलता है, मुझे पता है, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं. But कभी-कभी, I'm only talking to the youngsters, please do excuse me if I hurt anyone's feelings, but कभी-कभी वो सिर्फ
कुछ दिखा रहा है एक अच्छा सा चमक, उसके पीछे भागना, I don't think that is what one should be targeting. If you have something really special for that field or that area to give, yes, of course, why not? But just because it's money, it's a little bit of fame, that too not individual identity, what is the big deal? तो हम तो रोटी सूखी खा के भी अपनी पहचान बना सके और चार लोग पहचाने आज ईश्वर की दया से all over the world. And we truly, I'm not saying it all because I need to talk about myself, but because this is a place where Rakesh told me I should be able to even stir someone's mind and soul to have you speak from here, from within, and not just follow A or B or C factors. तो नाम भी नहीं, नाम या ओहदा या I am, though she did say that I have a few achievements and a few awards behind me, but not all those Padmas and the award. Yes, the Academy Award, which is very prestigious and which really means a lot. Very few people's that has some weightage. Or yeah, a few more, which really are very special ones. But that just Ishwar Kripal se, mere Guru ke Ashirwad se, came by the way. We did not and never even now look towards any material gains, whether it is naam or paisa or whatever. The joy of the art, the joy of being able to even spread a message to छोटे से लेकर बड़े तक, the joy of sharing the divine form, relating to the divinity, relating to one's soul, relating to one's feelings, and यही अपने आप में इतनी fulfilling है कि मेरे ख्याल से वो अगर आपको मिल जाता है जो आपका हृदय, आपका सोल, आपका मन, आपका कॉन्शियस, जो चीज हर वक्त खुशी देता है, उससे बड़ी बात शायद कुछ नहीं है. पैसा क्या देगा, पैसा आज है कल नहीं है, खर्च कर दिया तो गया. ये नॉलेज और ये आनंद to share, to be able to get the love from all those little ones जो आके ऐसे प्यार करते हैं. हम लोग महाराज जी के साथ every year कम से कम नहीं तो minimum from all over the country and abroad, कम से कम नहीं तो 8-10 हजार लोगों को सिखाते हैं. 500 बॉम्बे में अभी हर साल जाते हैं, 300-400 कोलकाता. मैंने कुछ वर्कशॉप्स तो ऐसे हैं जो वो एनुअली करते हैं, तो 3-4 हजार वो and then adding up to here and there and there, उस 6-7-8 हजार लोग, and then the joy that we see in their face, and then the tears that roll out when we leave, and then the love that we get, इसका कोई मोल नहीं है. So I only have to say that, and that is because the great master is by me, how much he has worked towards it, how much he has made it popular, not compromising with the richness of it, the traditional strength of it, and yet taking it beyond boundaries of anywhere. और इतना ज़्यादा उन्हें उसने काम किया है जो आज मैं जब शुरू की थी, and let me share which I always love to do, my unbroken link with my Guru and learning with my Guru for only with a big underline 42 years or more. I really like to hear this applause at this point because it gives me joy. मैं एक बहुत बड़े आदमी को बहुत आइकॉन को बहुत भक्ति करती हूँ, not that I am anywhere near him, but उनकी वो feeling का मैं सम्मान करती हूँ. And like she said, if people say I've done any justice to my Guru, I feel proud. That is Vivekananda ji towards his Guru. तो मैं अपने आप को उनका एक छोटा सा नीचे का एक follower समझती हूँ, and all that I've learned and I'm speaking is because of the blessings and guidance of my Guru. Thank you, friends.
I will now request Maharaji and Rajni to lead CI. This whole big box is ending a lot of vision. Do you think we... We are so happy to meet the people because the audience for me is very important. Otherwise, I can dance in my room and finish. The audience, always I am telling that. I can express myself in Hindi more. Please. अंग्रेजी हिंदी ने मुझे बांध रखा है, अंग्रेजी को देखता हूँ झांक कर। कम भी हो, जब जरूरत पड़ेगी तो देन आई कैन स्पीक। अमेरिका और लंदन में बोलता हूँ, देन उसके बाद जैसे ही जाता हूँ इंडिया में तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ। हिंदी की साहित्य, हिंदी के अंदर हिंदी का जन्म, हिंदुस्तान का जन्म, हमारी मदर है, हमारा हिंदुस्तान। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सभी लैंग्वेज को, क्योंकि भावना को आई कैन अप्रिशिएट द भावना। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, इंसान आप हैं, इंसान आप हैं। खुशी आप भी चाहते हैं, खुशी हम भी चाहते हैं। आनंद आपको बचाइए, मुझे भी चाहिए। शांति आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। शांति, आनंद, ये दो नाम है जो संगीत का ही हिस्सा है। संगीत का पीस है बटा हुआ जो आनंद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि शास्त्री ने कहा, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे आप, लेकिन जो एक इंसान को गले से लगा देना है वो हम लोग को बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए हम ज्यादा, हम लोग बहुत जोर से खुश होते हैं। पैसे भले ही न मिले, लेकिन प्यार भरी नजर, प्यार भरी प्रशंसा, वो तो हम लोग इतना कमाते हैं कि उसी के समंदर में रहते रहते हैं। यहाँ और कुछ नहीं। हम लोग साधक हैं, हम साधु हैं। हमने बचपन से 3 years की एज से हमने ता थे तत् आ थे तत् इसको पहचाना है और उसी का जाप किया है घुंघरूओं के जरिए। घुंघरू हमारी माला है जो संत महापुरुष हाथ में लेते हैं, हमारे घुंघरू कहते हैं। अखंड जाप प्रभु का जो सत्य है और जो सबके लिए सत्य है, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, अंत में होता है प्रभु को याद करो, वो वही देखेगा। हम लोग इंसान के ऊपर बस हो जाता है, लेकिन प्रभु तो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वही देखता है। और आनंद के बगैर भैया ना आप है ना हम है। वो डाकू भी सोचता है कि वो पेड़ की छांव मिले, 2 रोटी आराम से खा ले। उसकी भी बात करूंगा। हर आदमी, हर इंसान चाहता है 2 रोटी सुख से मिले। वो कौन नहीं चाहता? दुनिया का हर इंसान चाहता है। संगीत अनजाने में आप सबके मन में है, आप इसको जगा नहीं पाते, हम लोग जगा पाते हैं। आप भी खुश होना चाहते हैं कि परिवार में कोई बच्चा पैदा होता तो कहते आज खुशी से नाच उठा। आज जो चपरासी आया था लड्डू बात कर रहा, खुशी से नाच उठा। न भरतनाट्यम नाचा, न कथक नाचा, न वो कौन सा नाच था? वो आनंद का नाच था जो प्रभु ने नाचा है, जो उसकी आशीर्वाद से हम नाचे हैं, वो आनंद था। और वो आनंद कौन है? वही तो संगीत है, वही तो नृत्य है, वही सब कुछ है। आप सबके मन में छिपा हुआ है, उसको जरा से झांक के देखेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, एकदम आपको गले से लिपटा देगा। वो म्यूजिक एकदम से लिपटाएगा। भले आप इसको ना सीखें, ना गाएं, ना नाचें, और नाचता है मन, नाचता है मन, गुनगुनाता है। आपकी आवाज ना गुनगुनाए, लेकिन गुनगुनाता है वो मन जो प्रभु ने दिया है। क्योंकि हर देव देवी देवता हमारे सारे म्यूजिशियन हैं। भगवान कृष्ण ने नाचे भी हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और ऐसी बजाते थे कि पूरे सब तरह के लोग, जानवर, पशु पक्षी सब आपके नजदीक बैठ जाते थे। शेर भूल जाता था अपनी क्रोध को, हिरण भूल जाता था सबको। शेर और हिरण सब साथ बैठ के सुनते थे उस नाद को जो भगवान कृष्ण के बांसुरी से बने। वो क्या जादू था? वो कौन सा म्यूजिक था? भगवान शंकर के पास त्रिशूल, त्रिनेत्र
सब कुछ था, पर उन्होंने भी डमरू पकड़ के दिखा दिया बगैर नाद के जीवन नहीं है। तो डमरू जो है वो स्वर है, वो सब कुछ है। लिहाजा आप जरा से जगाएंगे अपने मन को तो आपको सुनाई पड़ेगा वो नाद जो छुपा हुआ है। और हम लोगों को तो शून्य के अंदर हर पल हर क्षण जैसे ईश्वर आपके चारों तरफ रहता है, वैसे हमें अब शून्य में हम लोग दिखाई पड़ता रहता हम लोगों को कि ये म्यूजिक की लाइन जा रही है। पकड़ कौन सकता है? जो प्रभु ने ट्रांजिस्टर बनाए हैं, हम लोग की बुद्धि को हम पकड़ पाते, कई लोग नहीं पकड़ पाते। और अलग अलग साधनों में वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, सरोद ने फ्रीक्वेंसी पकड़ी, तबले ने फ्रीक्वेंसी पकड़ी। कहां से हो रहा है? टेलीकास्ट हो रहा है ऊपर से, उस मालिक ने टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और हम कौन पकड़ रहे हैं? सितार में पकड़ रहे, रविशंकर परमेश्वर ने भीमसेन जोशी ने अपनी आवाज में पकड़ रखा है, हमने अपने घुंघरों में पकड़ रखा है, हम अपने एक्शन में पकड़ रखा है। कैसे फ्रीक्वेंसी तो घूम रही है और पकड़ने वाला भी तो चाहिए। और वो आनंद की सीमा हम लोग जानते हैं। उस आनंद में एक तारा बजा बजा के प्रभु के साथ खड़ताल बजा के जोरदार कर गए तो साधु साधना और विश्वास वही कामयाब होती है। जैसे आदमी शादी करने का पैसा तो आएगा जाएगा, उसका कष्ट भी होगा, अगर जाएगा तो कष्ट भी होगा, यहाँ तो जाएगा ही नहीं। कष्ट जो है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? उतना सा है कि अपने अपने लायक कर लिया, हम उसी में खेलेंगे खाएंगे, जरूरत क्या है? पर हम आप सबको दुआएं देते हैं कि आप जिस कार्य में हैं हम सब आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि हम हैं साधु, हम हैं साधना करना है, हम सबके भी कामना करते हैं। और प्रभु ने हर तरह के काम करने के लिए हम तमाम लोगों को बनाया है। एक ही काम तो नहीं, अगर आप सब लोग नाचने लगेंगे तो दूसरे काम कौन करेगा? देखिएगा कौन? आपको भी ऑडियंस चाहिए तो सब यही करते रहेंगे। सारे डॉक्टर नाचने लगेंगे तो इलाज कौन करेगा? लिहाजा हर व्यक्ति को प्रभु ने सौंपा है, तुम्हारा ये कार्य है, तुम्हारा ये कार्य है, और उस सब को मिलकर जीवन चलता है तमाम चीजों को मिलाकर। तभी पंखुड़ियां खिलती हैं। अगर एक ही पंखुड़ी खिलती रहे तो वो फ्लावर नहीं कहलाता है। फ्लावर तो जब खिलता है तो हर चीज की जरूरत होती है, हर पंखुड़ी जो है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, तभी फ्लावर ही कहलाता है। उसमें हम सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, वो भी हैं, ये भी, सब लोग हैं। एक फ्लावर के अंदर कितनी पंखुड़ियां होती हैं, एक गेंदे के फूल के अंदर कितनी पंखुड़ियां होती हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग है। तो बस इतना मैं कहूँगा कि आप तमाम उन किताब के उन तमाम स्टडी के साथ थोड़ा सा संगीत और जो प्रभु का नाम है उसको जरूर सोचते रहना। और जब प्रभु को सोचोगे तो संगीत जरूर अपने आप दरवाजे पे दस्तक देगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं गया नहीं हूँ, जरा सा मेरी तरफ देख लो। और आनंद बन जाए। फूल कभी भी नहीं कहता मैं खिल रहा हूँ, फूल ने अपना खिलना सीखा है और वो पैदा हो तो फौरन ही सुगंध देने लगता और फूल खिल जाते हैं। अच्छा किसको नहीं लगता कि फूल बड़ा गंदा चीज है, क्यों पैदा हुआ है? कभी कोई नहीं कहता। फूल को देखते ही सबका मन होता, आह कितने सुंदर रंग बने हैं। वो रंग बने हैं यानी संगीत ने उसको रंग दिया है अंदर से। वो संगीत ही है, वो खुशबू संगीत ही है जिन्होंने फूल को अंदर वो बात पैदा कर, वो ब्यूटीफुल सुंदरता की हम सब लोग भक्त हैं। सुंदर सुंदर इंसान में हो, सुंदरता प्रकृति में हो, नेचर में हो। अब यहाँ जब मैं एंट्री किया मैंने कहा कितना हरा भरा लग रहा है, कितने हरेपन से ढका हुआ है पूरा ये एरिया, कितना मन को अच्छा लगा। हम भी प्रकृति को एप्रिशिएट करते हैं। इसकी गति सबके अंदर है। गतियों का तमाशा है कि अगर हम आराम से चलते हैं, प्रभु ने एक लय बनाई है, गति स्पीड बनाई है, बीच बनाया है। हम सब के अंदर बीच है और जब तक हम जीवित रहेंगे धुप धुप
ये धक जो था वो है कौन? अच्छा, अंदर से आवाज है, चढ़ा उठे उठे गा गा। गुरुओं ने उसको शब्द देकर पकड़ लिया और सालों में बांट दिया। ये धक जो है ना, तुम भी देख लो भाई, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। ये धक उसने भेजी है, पहला बीच उसने भेज दिया है। अब तुम जान लो, है बजाने वालों, इसको समझो। साधुओं ने कहा तुम खाली मेरी सुनते रहोगे, जिंदा रहोगे, खाली जीवित रहोगे, नहीं जानोगे वो कौन है। जानते हो वो कौन है? आप जान लीजिएगा तो धक धक वही आपका म्यूजिक है, वही आपकी धुन है जो बजती रहेगी जब तक प्रभु ने जीवन दिया है। वो म्यूजिक बंद होते ही तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। वो धड़का की जीवन है हर ब्रह्म के लिए, जो आपके अंदर धड़कता है और दौड़ने लगेगी तो वो धक 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 गाली निंदा और धक 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 गाली निंदा गति। हम सब लोगों में हरदम रहती है, हर मिनट हर सेकंड। पलक भी अपनी जगह पर अपने टाइम पर फटफट होती रहती है, खाली खुली नहीं रह जाती कि खाली सबके सब ऐसे आँख खुले हुए में रहते हैं, बाकी उसमें बंद ही नहीं किया। तो आंसू भर जाएंगे, लेकिन पलक कहती है कि थोड़ा रेस्ट ले लो। आंखों का आराम देता है पलक, हर पल ये होता है खुल जाता है, पल बंद करता है खुल जाता है। ये दर्शन है, ये बदल है। प्रभु ने सब चीज को अपनी अपनी जगह बता दिया। हंसने के लिए होंठ बना दिए कि अरे होंठ तो चुप न रहना, थोड़ी देर मुस्कुरा देना, अगर कुछ आनंद मिले। वो मुस्कुराहट ही म्यूजिक है, चुप म्यूजिक, साइलेंट म्यूजिक है। साइलेंट म्यूजिक की सबसे बड़ी चीज है। लिहाजा आप लोगों से वैसे मिलकर बड़ा आनंद हो रहा है, और जो भी आपके मन में हो, मेरा तो द्वार म्यूजिक है भैया, उसके ही अकॉर्डिंग में चलूंगा, क्योंकि मैंने तो एक ही जाप किया है, लय ताल स्वर, और वो आनंद है और आपको सबको आनंद देता रहेगा। आप जान लेंगे तो सच में आप झूमने लगेंगे। तो उस सूखे काम के साथ गीलेपन को भी थोड़ा सा दे देने से आपको अच्छा लगेगा। बस बनाए रखिए, आप झूमते रहेंगे, अकेले में भी मजा लेंगे, किसी की जरूरत नहीं। हम तो अकेले में रहते तो भी आनंद लेते हैं। कोई कहता है, एक अखबार वाले ने कहा, हेडलाइन थी फुर्सत में, कि आप फुर्सत में हेडलाइन मारा, आप फुर्सत में कर रहे हैं। मैंने कहा वही तो नहीं मिलती है, वो मिलती तो वो सोचता, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो घर तो रुकती नहीं है। सब शून्य बिखरा हुआ है, मोती उठ गए, धर्म मिला चुका है, कट संगीत धान था विदे ताल कट तब तक विदे विदे नगीर चेंज करते हैं, तब विदे की विदे की धर्म में नामी का विदे की ताल विदे की विदे की धान था। हम लोग हमारे लिए ये पुष्प है जो पृथ्वी पर नहीं खिलते हैं, शून्य में खिलते हैं, स्पेस में खिलते हैं, और हम उसको दृष्टि से देख सकते हैं कि कहाँ है और उनको हम एंजल को कैनवस पर बनाएगा, आप कागज पर लिखोगे, मुझे कागज नहीं चाहिए, जो खाली है वो मेरा कागज है, और दिमाग मेरा बुद्धि जो है मेरी कलम है, उससे मैं लिखता हूँ। उस शून्य में जो प्रभु ने जितना बड़ा कैनवस बनाया है, हम तारे को कागज ढूंढे नहीं ढूंढते। वैसे आप हमसे कहोगे तो मैं 3 और 5 कितना होता मुझे नहीं मालूम, गिनना पड़ेगा, 5 के बाद 3 है, 6, 7, 8 होते हैं जी। पर भैया उसकी जो क्राफ्ट से जो बनते हैं वो मैं कैसे दिखते हैं, तार की नैया पे बैठ के चलता हूँ, सब दिखाई चलने लगता है, हाँ दिखाई। मैंने कुछ समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, कोई विशेष बात अगर किसी ने पूछना, हम लोग कथा करें ना तो आप तो 7 दिन बैठे लोग ना, आपके पास जितना समय आप चाहें आप लीजिए, जैसे भी जिज्ञासा हो। हाँ, and also if you would like to have some questions, this is the time to ask. सर मेरा पानी मुझे कब हुआ है, तो 4 दिन से ऐसी हालत में दुबई में के आ गया, पता नहीं कहाँ। हम लोग रोज चिड़िया देखते हैं,
हम सभी जानते हैं कि चिड़िया उड़ी घोंसले में गई, बच्चे को दाना दिया, फिर उड़ी, फिर दाना लगी। आप लोगों ने सोचा उसके अंदर क्या दिखाई दिया? एक काउंटिंग बोलता हूँ और आपको चिड़िया दिखाई पड़ेगी। काउंटिंग गिनती है सिंपल, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये था हम लोग का वो है मुहर था, मतलब खत्म। बाकी 1 2 3 4 3 4 लाइन करके 1 2 3 4 3 4 छोटे पंख वाली 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5। उसके बच्चे मुंह खोल दिखाए 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। बोला नेचर, हम सब नाचते हैं, अपने अपने काम में सब नाच रहे हैं, अपने चक्कर में हैं कि हम कब वो पोस्ट पाएंगे, नाच रहे हैं, लगे हुए हैं। नाच बंद कर दोगे तो कैसे पास होगा, कैसे ऊपर जाओगे? नहीं, नाचना पड़ेगा। दूसरा, एक सुस्त आदमी है, बहुत एक एक्टिव है, बहुत लेजी है। सबके दोस्त होते हैं। एक दोस्त लेजी होता है, चल यार चल घूमने जाता है, चल घूमे चल, क्या यार बहुत दर्द बेकार नहीं हुआ, क्या है तू भी अभी आपको पकड़ के ले जाना। चल ठीक है, हिंदी काबू नहीं, उर्दू नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं। पहला कहता है नेचर से कहाँ लगे तो दोस्त की बात है। सबके मम्मी पापा रिदम में सब्जी खरीदते हैं, मटर रिदम में पकाती है, ज्यादा जो रोटी में तो जल जाएगी, टाइमिंग तो उसका ठीक से देने का उसको खा लेगी तो रोटी मिलेगी और ना वही जल जाएगी। एक हमने हमारी भतीजी का जिक्र कर रहे, 2.5 साल की भतीजी। आप पहले तो सब्जी खरीदने जाते हैं, उसके लिए बस यही फर्क है कि तबले वाला साथ नहीं जाता पीछे, ना अब बनिया गया, बनिया तक गए, क्या मुझे पावर था दुनिया दीजिए, तो कह मेरे बाप ने भी नहीं देखी दुनिया कौन चीज है, क्योंकि भाषा खराब हुई। मुझे पावर धनिया दीजिए तो कहेगा मुझे पावर धनिया, कल पावर मुझे था दुनिया दीजिए। यानी रिदम आपने ब्रेक कर दिया तो भाषा बदल गई, भाषा बदल गई तो काम खत्म। मेरी भतीजी को मैंने कहा तो हमें महाराज जी और ताऊ जी, हम उसके ताऊ जी, महाराज जी और ताऊ जी दोनों मिला के बोलती तब जी, महाराज जी भी हो गए, ताऊ जी भी हो गए, तब जी। मैंने कहा बेटा समझ नहीं आई, मैंने कहा सब्जी खाती हो? हाँ सब्जी खाते हैं। तो सब्जी कितने मात्रा की? 3 सब्जी, 3 शब्द है। सब्जी पूरी कितने मात्रा की? 2 सब्जी पूरी थी। अब देखिए रिदम को आप करेंगे तो ब्राउन बनाना पड़ेगा। नहीं पैर सुनाई देगा। तो मैं नहीं सुनाई देगा, सुनाई देगा बेटा। नहीं
सब्जी पूरी, सब्जी पूरी, सब्जी पूरी और कचौड़ी, और कचौड़ी, अब हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे। छोटी थी कि उसको होता था करके Sounds simple. इतना सारा उसको याद नहीं हो रहा। तो महाराज दिस वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद लिटिल चिल्ड्रन, 3-4 साल की। तो इस तरह से एक बार ही बोली महाराज जी और उसको याद है। महाराज जी ने कहा इसको ऐसे ही सिखा लो बच्चों को, बाद में बोल चेंज कर देगा, गलत नहीं कर देगा। तो सवाल हल है। हाँ, यानी आपके जीवन में हर ऐसे 50 महाराज जी ने बना दी। एक और नतीजे में रसगुल्ला नहीं, वो सारी मोटरसाइकिल होगा उसमें पैर अक्सर और अब हमारे रिजल्ट में फरमाइश होती एक दो 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रसगुल्ला, रसगुल्ला, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा। खाने में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका भावना तो पैदा साथ उसकी खुशी उसके चेहरे पे। छोटे छोटे बच्चे ये सब इस तरह से see these are like and Kamalini that the television lady, I mean she is a very creative person, really telling Doordarshan ki wo ab to retired हुई just recently. She said Shashwati Maharaj ji has done something you don't realize what, like nursery rhymes at one time. What meaning did it have? Jack and Jill went up the hill. वो क्या मतलब क्या कोई relevance है जिंदगी के कहानी में नहीं, पर वो joy of learning those words, hill, ऊपर नीचे, coming down, falling, instead of teaching them grammatically, it is that chanda which helps them to learn. Similarly here Maharaji Ajvi, that was a beautiful experiment and so many he made. और वो बच्चे जब करते हैं इसको इतना में जो कष्ट रसगुल्ला खुश हो जाते हैं। तो एक्चुअली महाराज जी ये सब चीजें कहाँ, ये तो महाराज जी ने अपने एंसेस्टर्स से नहीं मिल पाया, कहीं दूर दूर से भी ये तस्वीर नहीं थी। हो सकता है कोई सुनता तो कहता है कि रसगुल्ले क्यों डाल दिए, बट what it achieved and what it, the message and what the motivation came through it is really, हम लोग अमेरिका में कर रहे थे तो वो सारे महाराज जी छोले कुलचे और भी है, महाराज जी बोलिए करते खाले बेटा खाने का रसगुल्ला होगा, छोले कुलचे और गोलगप्पे जो कल हम लोग गए थे एक कोने पे, एक 2 गोलगप्पे खिलवा लो, ऊपर से गोलगप्पे का पानी ऊपर से आया, गोलगप्पे वाला भी भीगा और हमने सिर्फ 2 खर भागे। गोलगप्पे महाराज जी साथ की चलन समझा रहे थे, सेवन का चलन, और सोच के महाराज जी ने ये निकाले गोलगप्पे मजे में क्या, उसको हम मानते हैं कि वो इतना कठिन ले कर रही है, पर वो कर रही थी। बोली छोड़ी अपर भटूरे, छोड़ी और हाँ गोलगप्पे आप बोले ना बताएं।
या वो करते हैं। अच्छा हाँ हाँ, बहुत सी चीजें देखा वो एक नहीं बोले तो संसार की हर क्षण हर मिनट रिदम में दिखता है, हर पेड़ डांसर दिखता है। ग्रोथ होने के बाद उसके हाथ यूं फैलेंगे, यूं फैलेंगे, या वो यूं ऊपर जाएगा, वो यूं नीचे जाएगा, उसकी गालों के अंदर पूरा मुझे डांस दिखता है। सब सीधे सीधे नहीं जाते ताल की तरह, उसने एक ही सीखा था ऊपर 4 पत्ती से रख, लेकिन दूसरे पेड़ों में डाली जो निकाली अनेक अंग निकले खासकर। महाराज जी ने ये तिहाई हम लोगों को इसको कहते हैं रिदमिक फ्रेजेस। इन रिदमिक फ्रेजेस को महाराज जी ने क्या क्या छवियों में सजा दिया है कि वो उमंग उल्लास उसमें दिखता है, लय भी समझ में आती है और जनरल ऑडियंस को, बच्चे हो बड़े हो, उनको एक तस्वीर दिख जाती है तो वो लय के परे इट बिकम्स विजुअल। दैट रिदम व्हिच इज ऑरल, व्हिच इज कैलकुलेशन, becomes a visual message, a visual poetry. हाँ, बोलो जी। अब देखिए एक नया नजदीक बाल गया तो उसने था उसने मार दिया एक पूरा रिदम में उसका डिस्टेंस बताओ था, दूसरा बाल थोड़ा लंबा गया पान था, उसे थोड़ा डिस्टेंस था। बॉल जैसा घूम रहा है उसके हिसाब से धार मतलब स्टॉप। The strike, the dribble and the goal. दूसरे के पास जाए और फिर वो घूमे लगा ऐसे का। मुझे सब खिलाड़ी सब खेल सब ऐसे दिखते। अच्छा इसकी आज का तो क्रिकेट का कमेंट्री में फुटवर्क ठीक नहीं, सबने शायद कथक सीखा होगा हमें ऐसा होता है इसका फुटवर्क ठीक तक हम कहते हैं वाह ये तो डांस से रिलेटेड। कलाई की बोर्ड से उन्होंने छक्का मार दिया। कलाई हम लोग सिखाते बेटा ताकि कलाई गुना और एक कलाई भी चली गई छक्का भी लग गया, जैसे पाँव से भी झाड़ दूँ सारे तो लहदारे भैया सब क्रिकेट वाले सबको, लेकिन उनको एक दफे में करोड़ मिल जाता है, यहाँ 5 लाख भी नहीं मिलते। एक बहुत हर बहुत का काम लगा हुआ है, 2.5 घंटे नाच के खून पसीना है, एक से एक करिश्मा दिखा रहे, जितना उसमें भी कैसे डोनेशन हो जाए थोड़ा। तो हम लोग सच में लक्ष्मी उतनी लक्ष्मी माँ मिलीजिए जितना अपने बाल बच्चे आराम से रहे, हम लोग मस्ती से रहें, आपकी जरूरत क्या, लूटने का था न चिंता, मेरे पर लूट लेगा भाई नहीं लूटेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों से मिलकर बड़ी अच्छी ऑडियंस जो हमको इतनी देर तक सुन रही हो, सुन के कुछ चीजें हमारी अपने मन में विचार रखेंगी और आपको मजा आएगा जिंदगी में। हमारी बातों को सुनिएगा और दिल में सोचेगा, दिमाग में थोड़ा सा आनंद आएगा, कुछ तो आएगा। हम सबकी तरफ से दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। महाराज जी
here. There's a workshop that is happening there. Please join if your children are interested, and we have more time. फोटो जरा मैं इधर जाता हूँ, जरा यूँ खींच लो। मैं भी सुनने वाला हूँ। अलग अलग जगहों पे अच्छा ये हाँ ये इस तरफ का क्या फिर इधर का करिए मैं दिला देना क्या मैं बड़े लोगों के साथ बैठे थे बच्चा को कहता हूँ तो मेरा हम मैनेजमेंट वालों की क्रिएटिविटी कैसी लाइफ दिखा दीजिए तो हम भी फिर ऐसे नाचते दिल्ली में इसको खाली फोन दे फोन अभी थोड़ी छोटी है और मैं आने के लिए ठीक नहीं है पर दीदी के साथ राकेश आप चाय पियेंगे बेटा राकेश हाँ जी, चाय पियेंगे आप चाय पियेंगे, बिल्कुल चाय पियेंगे। ये भी करेक्शन हमारे महीने की पुरानी मेरे साथ लखनऊ में प्रोग्राम किए थे हम 93 के लिए which was about Ganga Jamuni culture of India, especially Lucknow, Indian Muslim synthesis of cultures. जो कथक में बहुत ज़्यादा दिखता है, ना हिंदू पीरियड ना मुगल कालीन। चार मतवारी पंडित जी एक सवाल पूछ रहा हूँ हमारी लाइफ के रिलेटेड। जैसे हम लोग को लगता है कि वी लीड टू मच ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ, जब हम आपको शायद आप हमसे ज़्यादा रियाज करते हैं। जी जी। सो व्हाट इज इट कि you are able to manage all this stress? So what tips you will give to our us management students? थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे रियाज के पीछे एक आनंद शब्द छुपा हुआ है, और वो जो रियाज है वो मुझे बजाय दुखदाई करने के सुख देने लगता है। अब आपके पास जौन सा भी साज है रेडियो पे बज रहा है, कैसा बज रहा है, और खास करके जैसे भीमसेन जी या अमित खान साहब का गाना है जो आपको समझ में नहीं भी आता है, उसके नाद को आप बदले दीजिए ध्यान में और अपना काम करिए। मानसिक तनाव को मैं टीवी देखता हूँ, लिखता हूँ अपनी कविता, देखता हूँ टीवी हिलता है, लिखता मैं अपनी कविता, आ जाए। तो आप खुद आनंद में रहेंगे, आप घूमते रहेंगे, अच्छी बातों को सोचेंगे। और उसके बाद हमारे एक डॉक्टर थे, अब तो नहीं है, पटना में शिव नारायण सिंह मेडिकल के डायरेक्टर थे। वो 50 मरीज को देखने के बाद कहते थे 20 मिनट का गैप करो, अंदर जाते थे कमरे में सितार बजा के वापस आते थे और आके 50 मिनट लिखते थे। और उनकी दवा सबको इतनी अच्छी लगती थी कि डॉक्टर साहब की दवा कमाल, क्योंकि सितार साथ साथ उनको रिलीज। How the younger generation coming forward to learn this? अरे
we have in my institution 250 now, and from America, from France, from Germany, from Korea, many places. I appreciate them because they are coming from far and they are learning so particularly. If there is rain, there is only to one, but they are coming. And one my student went back to Japan and she opened a class, Tokyo, Masako Sato, and now she has about 90 students. Yeah, in America, France, everywhere, Marathi students are teaching. So, but it is quantitatively, swollen a lot. Qualitatively, because first it was people who were only making it a career. Now everyone is not committing themselves to making it a career, but still, every household is now looking at encouraging the youngsters into dance or music. So, we are very hopeful, we are very happy with the scenario. Excellence is very difficult. साधना खुद में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है. हम लोग भी हमारे फील्ड में एक्सेलेंस में जाना चाहते हैं, but we at times get demotivated when we see a stiff resistance, right? आप कैसे अपने आप को इतना lively, इतना enthusiastic बनाए रखते हैं? ये क्या जड़ी बूटी है? यही केंद्र बिंदु है कि आनंदित होके अगर जो चीज़ मेहनत और स्ट्रेस और उसको एक जिम्मेदारी और हम लोग घंटों रियाज करते हैं. मम्मी वगैरह कभी कहती थी 6 घंटा क्लास कितने देर में आई है, रात को लेट नाइट रिहर्सल, एंड वी कम बैक विद सच ग्लीमिंग फेसेस. यार मेरी एक सहेली थी, उसकी शादी जब हुई थी वो गाती थी बहुत अच्छा, अब आजकल इतना नहीं हो पाती. उसके हस्बैंड बहुत ऐसे, भाई हमारा घर का देख के उसके बाद तुम जो भी करना है वो कर लेना, पर ऐसा ना हो कि तुम्हारे गाने बजाने में तुम फैमिली भूल जाओ. तो ये दिस वाज वन कंडीशन, आई वोंट स्टॉप यू बट टेक केयर ऑफ फैमिली. तो वो सारे काम अपने ऐसे स्पेयर टाइम में रात को खाना खिला के सारी रात रिकॉर्डिंग कर रही है, सुबह 4-5 बजे लौट रही है. तो उसके हस्बैंड बीच बीच उठ के देखते थे, अच्छा अभी भी नहीं आया, शुरू की बात. तो वो 5 बजे आई, नहा धो के अपना शुरू खाना बनाना नाश्ता करना. भाई कब रात तुमको कि तुम कहीं भी नेगलेक्टिंग योर ड्यूटीज में क्यों तुम थकान नहीं उठ रहे, वो तो और रिजुविनेटिंग है. सो दैट इज व्हाट इट इज. मेरे ख्याल से जीवन में कुछ क्षण अच्छे होते हैं, चाहे प्रेम की वजह से चाहे भक्ति की वजह से, वो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे ना कि अपना काम में इसको माध्यम बनाना चाहिए कि वो आपका क्षण क्या तो सारे हमारे काम अपना करिए, फिर आप इसको खाइए, बार बार इसको लाइए काम में, फिर आपका हर काम हल्का सर वाइट अजीब सी चीज़ है कि सब कुछ हो जाता है. बिल्कुल दमको हम देख रहे हैं. दीदी वो ढाई शाम रोक लेने के बाद में अपना फिल्म में आया नहीं ना गाना, माधुरी चले जाने के बाद मुझे लग रहा है वो रौनक चली गई. और प्रभु चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हम दिखाई पड़ेंगे फिर से. एक महाराज हमारे चचा शेख सुनाते थे, मेरी सुनना उधर मेरी आंखों से होकर खाने दिल में उतर आओ, मेरी आंखों से होकर खाने दिल में उतर आओ, मकान छोटा है लेकिन आपके रहने के साथ मकान छोटा है लेकिन आपके रहने के साथ आप रह सकते हो. इसलिए आप सब लोग मेरे दिल में रह सकते हैं निश्चिंत होकर, क्योंकि आपके साथ इंसान सब लोग हैं. वैसे क्या क्या सीखे हैं आप लोग? जनता
ये लड्डू चाहिए एक बटन कंधे का आप ब्रेक को डाउन नहीं करोगे तब तक वो भार नहीं होगा। कंधे के ब्रेक को आपको डाउन करना है तब वो भार होगा। कंधे के ब्रेक को डाउन करना नहीं करेगा तो उस समय में हाथ उठाओगे। ये हड्डी वाला बोन है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये एल्बो का बोन पीछे कर जो हटाते हैं रिलैक्स। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होगा क्योंकि एक जो करने के लिए आप उपयोग करते हैं नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको जो घूमना ही पड़ेगा तब वो हाँ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सब लोग समझ रहे ना, सब लोग ठीक है। करने से गिराई हाँ कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। आप चिको नीचे गिरा। हाँ और उसको आप जो उठाओगे एल्बो उठाओ, इसको गिराओ। हाँ ऊपर से स्लिप बॉडी के ऐसे वहाँ से आएगी और एक भाग में निकालने पर सेंटर से अब फिर इसको धीरे से इसके बाद ये हाथ करेंगे तो वो सही रहेगा। अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो वो सही नहीं होगा। सीटी बदला है, कोई ठीक है। ठीक है, सीटी बदला है। नेक्स्ट बिहार बोलिए। दीना 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 दीना
मत से आप डिसाइड कर लें फिर कहाँ कहाँ